Thank you, Abhishek. What you are doing is a commendable job Thank you, sir. for the society, and the forefront people like police department, health workers, plus the sewerage workers, these cleaning workers, they are doing commendable job in the society. I thank all of them. Being a medical fraternity, we are also working very hard to take care of these COVID patients, because nowadays what is happening, day by day patients are increasing in number. Almost you see 60,000 plus patients per day all over India, 1400 patients per day in Rajasthan. Definitely. Now what we are facing is, if this number is going like this, and I feel that these numbers will increase by folds in the coming months, like September, the number will go to 1 lakh per day. That is a very scary situation. For that, we advise everyone to keep distance, wear a mask, and should not worry, should not be very panic in a situation, but they should be confident that they should keep distance and wear a mask and avoid gatherings. Don't go in parties. This year you should not go for any party. Don't celebrate any of your festivals, any of your these rituals, so that you can survive, and next year you can say do it. Definitely, doctor. But do you really think that people are taking coronavirus seriously now as compared to the earlier days? Because I personally think, and I personally feel, that now we have run into a stage where majority of people don't care whether corona exists or not, because they have a perception that we have a good immunity, and even if we catch coronavirus, nothing will happen to us. Is it true according to you? No, this is a human tendency. This is not seen only in India, this is seen all over the world. You see in United States, you see it Italy, you have seen it in Spain also, where the number of cases are increased initially. When they stopped it, then they started gathering also. In United States, you can see they are doing lot of gatherings, lot of parties. They are going in malls, and numbers are increasing by day by day, in 60,000, 70,000 a day. In states, is still there. So this is a human tendency. But I can advise just that sometimes you have to what I say कि अपने मन को मारना, तो you do it and keep the things in control. Only मन को मार करके आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंसिंग करके, सोशल एक्टिविटीज़ कम करके, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करके रहेंगे तो थिंग्स विल गेट बेटर. इंडिया के अंदर इनिशियली जैसा लॉकडाउन किया गया, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. उसमें लॉकडाउन का पर्पस था, एक तो अपने को ये अवेयर करना कि कितना इम्पोर्टेंट है ये. दूसरा, टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पेशेंट्स. हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ वी कैन create number of beds, number of infrastructure for the patients, critically ill patients. So the lockdown is important, it was important. Now since they are opening, we have number of festivals, Rakhi, Eid, the people have started gathering, and now that after that numbers are increased. You have seen after these festivals numbers are increased. So still I am believing कि things are not going well. We should keep distancing, we should keep. डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि इंडिया में एक ऐसा दिन आ जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कोरोना वायरस का, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा था इटली के अंदर और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी. वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक तरीके से फेल दिखाई दे रहा था. हालांकि उन्होंने बाद में फ़ाइट किया और अब वो एक बहुत अच्छी स्टेज में है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, हमारे यहाँ पे
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है एज़ कम्पेयर टू आर पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि हम भी एक दिन ऐसा सिचुएशन फेस करेंगे जैसा हमने इटली में देखा था या फिर हमने यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में देखा था? सिचुएशन, अगर आई फील इफ नंबर्स आर इंक्रीजिंग लाइक दिस, सिचुएशन कैन कम. Number of deaths maybe in thousands. We have seen in Maharashtra, we have seen in Delhi, and Jaipur is also not an exception for this. Numbers are increasing, and according to the ratio of population, if we see where there are 1,000, we have 250 patients, 250 deaths. So it is 1:4. Delhi population is also very high. Number of proportion is there. Yeah. But good thing is we have a very good recovery rate. Very good recovery. If I talk about Rajasthan, do you think Rajasthan is performing well? Because our recovery rate is higher than the national average and our mortality rate is lower than the national average. Yes, Rajasthan is doing well. Almost 80% is the recovery rate. Yeah. Almost 80%. And hope so this will maintain. डॉक्टर, अभी मॉनसून आ चुका है, लोग कैसे डिफरेंशिएट करें कोरोना वायरस के सिम्टम्स और जनरल जो इन्फ्लुएंजा फ्लू है उसके सिम्टम्स? फ्लू जो है, फ्लू इज़ अ कॉमन थिंग. उसके अंदर खांसी, जुखाम, नाक से पानी आना, बुखार आना, शरीर टूटना. इसके अंदर अगर सांस में दिक्कत होती है तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट गिविंग वेटेज टू द कोरोना वायरस इन्फेक्शन रादर देन द फ्लू इन्फेक्शन. सो सांस में अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये मान के चलें कि ये कोरोना वायरस हो सकता है, एंड वी हैव टू अप्रोच इमीडिएटली, गेट इन्वेस्टिगेटेड, गेट टेस्टेड एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट. तो सांस में दिक्कत इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. डॉक्टर, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें हैं, अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं कि आपको स्मेल नहीं आएगी, आपको टेस्ट नहीं आएगा. इन दावों में कितनी सच्चाई है? 5 to 10% of patients have anosmia and ageusia, means loss of taste and loss of sense. Those patients, studies have shown it, those patients who have these symptoms, they have very high recovery rate in spite of the others. ओके, तो अगर किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है और किसी को स्मेल नहीं आ रही तो वो जल्दी रिकवर होगा? यस, जल्दी रिकवर होगा और कंप्लीट रिकवरी होगी. दे विल नॉट गेट इनटू द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस. ओके, This was the studies shows कि those patients have developed these symptoms, they have very recovery rate, very good recovery rate, and did not go into the severity of the disease. डॉक्टर, अगर हम बात करें क्रॉनिक इलनेस की, क्रॉनिक डिजीज़ की, जैसे डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, इन जिन लोगों को ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं उन्हें घर बैठने के लिए ज़्यादा कहा गया है कि आप बाहर ही ना निकलें, बहुत कम बाहर जाएं. लेकिन ये बहुत कम सुनने में मिलता है कि इनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इनके लिए क्या स्पेशल केयर हैं कि अगर ये बाहर इनका जाना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है और वर्किंग है तो घर पे बैठ नहीं सकते, तो इनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, एक्स्ट्रा केयर इनको क्या करनी चाहिए जिससे ये कोरोना वायरस से थोड़ा सेफ रहें? इनको कुछ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें. देखो, इन सब में डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, हार्ट डिजीज़ है और अस्थमा है, तो इन सब कैंसर पेशेंट्स हैं, इन सब में क्रोनिक डिजीज़ के अंदर धीरे धीरे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है. वेन एवर द इम्यून सिस्टम इज़ वीक एंड यू हैव बीन स्लैप्ड बाई एनी अदर डिजीज़, दैट विल कॉज अ वेरी सीवियर डिजीज़, very severe symptoms. One thing, provided it should be controlled well, patient should be on proper medications, he should take proper precautions, then only the severity can be managed. They should, above the age of 60, or above all those patients who are obese, they have very severe mortality, very high mortality. डिजीज़ जो है बहुत ही सीवियर होती है और उनकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल से होती है. इन पेशेंट्स को
मेरी राय ये है कि दे शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। टाइमली जो वैक्सीन्स हम देते हैं, निमोनिया के लिए है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स हैं, वो टाइमली अपना यूज़ करें, लें प्रॉपरली, और घर में रहें, ज़्यादा जो है घर से बाहर भ्रमण ना करें। ऑफिस जाएं, ऑफिस से घर, यूज़ मास्क, कीप डिस्टेंस, हैंड वॉश प्रॉपरली एंड एवरी टाइम। कोरोना वायरस डायरेक्टली तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, किंतु कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कोरोना वायरस डायरेक्टली हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है, हमारी किडनी को इफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, और कुछ लोगों में तो ये शिकायत आई है कि हार्ट को भी इफेक्ट कर रहा है कोरोना वायरस। इन दावों में कितनी सच्चाई है? कोरोना वायरस डिजीज़ का जहाँ तक पैथोलॉजी का सवाल है कि भी कैसे अटैक करता है, दिस कॉजेज मेनली, जहाँ बायोप्सीज करी गई हैं तो उनमें ये पाया गया है कि खून की जो वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलाइटिस, ओके, वास्कुलर एंडोथेलाइटिस। सिंस ब्लड इज गोइंग एवरीवेयर, वेसल्स आर एवरीवेयर, दैट ब्लड इज सर्कुलेटिंग होल ऑफ द बॉडी, तो ईच एंड एवरी ऑर्गन इज अफेक्टेड। देयर इज नो मिथ, इट इज ट्रू। कोरोना वायरस आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है? Primarily, it is caused by the inhalation, or it gets entry through the orifices of the face, like mouth, nose, eyes. It gets entry from these processes. Since it is going to the lungs, it is causing primarily involvement there. From there, it causes the other system involvement. Doctor, is it mandatory to use hand sanitizers with high alcohol content like 75%? Or can we use diluted Dettol as well? No. Alcohol-based, this study shows the alcohol-based sanitizers, when you do the proper hand washing, that kills the all type of germs. okay, And once you wash it properly, you wash your hands, the hands cleaned remain for 20 minutes. So this is not the thing कि every minute you have to wash it. Once you have washed it properly, that will take care for 20 minutes for you. Any germ coming on those within 20 minutes, that cannot be affected. डॉक्टर, जैसे कि अब अनलॉक हो चुका है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो मार्केट जाते हैं, ऑफिसेज जाते हैं, या अपने किसी भी काम के लिए जाते हैं, उन्हें क्या बेसिक ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस तो आपको पता है कि थोड़े टाइम तक तो रहेगा। उनको क्या ऐसी बेसिक हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिनसे वो अपने आप को इस वायरस से बचा सकें? जैसे घर में आने के बाद क्या उन्हें मास्क रोज़ धोना चाहिए? क्या उन्हें मास्क एक पर्टिकुलर प्लेस पे बिल्कुल घर के बाहर टांगना चाहिए? या फिर उन्हें नहाना चाहिए जैसे ही वो बाहर मार्केट से जाके आते हैं या अपने ऑफिस से जाके आते हैं, तो क्या उन्हें घर आते ही सबसे पहले वॉशरूम में जाके नहाना चाहिए? नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क लगा के जा रहे हैं, आप प्रॉपरली मास्क को टांगें, हैंड वॉश करें, दैट इज़ इनफ। कपड़े धोना, बार बार नहाना, है ना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दोज हु आर वर्किंग इन द very contaminated zone, like doctors, health workers, police persons, they are coming in contact, they have to take bath. Just like me, I have finished my clinic, I will go first, I will take bath properly, and then I will meet with my family. Otherwise, when I am coming from the hospital, I am not going in the upstairs. I take a cup of tea there and then come directly in the clinic. Then after finishing the OPDs, I take bath. तो ऐसा नहीं है जो हाई कॉन्टामिनेटेड जोन में काम कर रहे हैं, हाई इन्फेक्शियस जोन में काम कर रहे हैं, उनके लिए। डॉक्टर, ज़्यादातर लोग अब वॉशेबल मास्क पहनते हैं, कपड़ों के मास्क पहनते हैं, तो क्या मास्क को डेली धोना ज़रूरी है या कोई और ऑल्टरनेटिव है? हैंड सैनिटाइज़र से मास्क को साफ़ करें या फिर डेली उसको वॉश करें? कॉटन मास्क जो है वो डेली धोने चाहिए। एंड N95 मास्क, दिस वर्क फॉर 3 to 6 hours. If you are continuously wearing it, 3 hours, and you can keep it for 5 days, and then it can be reused. What we are doing is, we have a set of 5 or 6 masks, and every day we are
using it, the first mask will come after the 6th day. So now 5 masks will work for 1 month because of the cost effectiveness, as well as the study shows that within 5 to 6 days, 5 days, 4 days, bacterial and viral infections are not there. So we can reuse it. Once the mask is soaked, it should not be reused. Means for saliva or for anything, it should not be reused. कुछ लोग ग्लव्स पहनते हैं, उसमें क्रॉस कंटामिनेशन के कितने चांसेस रहते हैं? ग्लव्स यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है. प्रॉपरली जो है पेशेंट्स पर्सन्स को यूजुअली जो है इन जनरल पॉपुलेशन को ग्लव्स यूज़ नहीं करने, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. और फिर भी अगर कुछ लोग यूज़ करते हैं तो उसके बारे में उनको अपना ध्यान रखना चाहिए. अगर यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड यूज़ इट प्रॉपरली एंड दे शुड डिस्पोज इट प्रॉपरली. डॉक्टर, क्या टेक अवे या होम डिलीवर्ड फूड सेफ है? टेक अवे फूड से अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई जिसमें टेक अवे फूड से कोई इन्फेक्शन बताया गया हुआ हो. टेक अवे फूड इज़ ओके. उसमें सिर्फ जो है बॉक्सिंग जो होती है उसको आप प्रॉपरली हटा दीजिए. जो भी खाना उसमें आया है उसको आप या तो गर्म कर लीजिए या माइक्रोवेव कर लीजिए एंड रीयूज इट. जैसे मार्च अप्रैल में कोरोना वायरस जस्ट आया था, तब से लोग गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि आप गर्म पानी पीजिए. अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो कोरोना वायरस अगर आपके गले में भी होगा तो वो मर जाएगा. इन बातों में कितनी सच्चाई है? बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने से तो गला और ख़राब हो जाता है. जस्ट ल्यूक वार्म वाटर पीने से क्या होता है, जब जैसे आप पानी पीते हो तो कोई भी कलेक्शन जो वहाँ पर है ना वो डाइल्यूट हो जाएगा. दैट इज़ द ओनली थिंग. यू क्लीन योर माउथ, यू क्लीन योर नोज, है ना, देन कलेक्टेड बाय वायरल पार्टिकल्स विल बी फिनिश्ड और रिड्यूस. दैट विल नॉट कॉज द डिजीज. गुनगुना पानी पीना चाहिए. दैट विल सूद योर थ्रोट. डॉक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी एज 55 प्लस है, आप क्या डाइट प्लान फॉलो करते हैं? इम्पॉर्टेंट थिंग इज वन शुड डू दी डेली रूटीन एक्सरसाइजेज. वॉक है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है, लाइक अनुलोम विलोम है ना. डेली जो है अच्छी से वॉक करें. दूसरा, खाने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना या नॉन वेज फूड जो है वो कम से कम यूज़ करें. फूड में फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं जिनमें विटामिन्स और होती हैं, और विटामिन सी इज ऑल्सो वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो भी यूज़ अच्छे से लेना चाहिए. जैसे विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में सब में होता है. वन शुड यूज़ इट. बट डॉक्टर, कितना कंज्यूम करना चाहिए? मेरे कुछ नोन है, जैसे ही पता चला उन्हें कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन सी लेना अच्छा होता है इम्यून सिस्टम के लिए, ऑरेंज जूस ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए, मौसमी खाने लग गए ज़्यादा, मौसमी का जूस ज़्यादा पीने लग गए, और कुछ ज़्यादा ही वो उन्होंने इस चीज़ की मात्रा बढ़ा दी कि हम ज़्यादा विटामिन इनटेक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे. तो क्या ये करना भी ठीक है? देखो, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ लोग मिथ्स भी फैला रहे हैं कि ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो, काढ़ा पियो, घर में ये बना करके लो, है ना. आई हैव फ्यू पेशेंट्स जो काढ़ा पी करके आए हैं और उनका गला इतना ख़राब हो गया कि कुछ कह नहीं सकते. इट वॉज वेरी वेरी सोर्ड. सो अति हर चीज़ की ख़राब होती है. नॉर्मल खाना जो अपन खाते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें बहुत ये है कि अपने अभी घर में लॉकडाउन में आप सब घर की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं. एवरीबडी इज़ वेरी हेल्दी. बिल्कुल. ऐसा नहीं हुआ कि हमने ये देखा हो कि भाई सब कुछ लॉकडाउन है तो हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए. ऐसा भी नहीं हुआ. दे आर रिड्यूस्ड. कुछ ऐसी चीज़ ऐसा भी है, लेकिन ये हेल्दी फूड जो है वो नॉर्मल जो फूड अपन खा रहे हैं वो नॉर्मल है. दैट इज़ हेल्दी फूड. कोई अपन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें तो खाते नहीं हैं. वेजिटेरियन फूड है, सैलेड्स हैं, फ्रूट्स हैं. दैट वाज इम्पॉर्टेंट. ड्राई फ्रूट्स हैं, बट एक उचित मात्रा में उचित मात्रा में ही लें. तो हर चीज़ के लिए खराब है. तो अगर हम एक संतरा रोज खा रहे हैं तो दैट इज इनफ. दैट इज इनफ. फिर आपके साथ साइट्रस फ्रूट में आप सब्जी में आपका नींबू भी जाता है. सब्जी में आपके टमाटर भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जाती है, तो वो भी साइट्रस ही है. डॉक्टर, क्या एक बार कोरोना वायरस डिजीज़ से रिकवर होने के बाद हमारी बॉडी
इम्यून सेल्स बना लेती है या फिर दोबारा से भी हमें कोविड वापस हो सकता है? देखो, मैं किसी को डराना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ, कुछ स्टडीज़ अभी हुई हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी ने करी हैं, उसमें री इन्फेक्टेड पेशेंट्स हुए भी हैं कोरोना के। और डर की बात यह है कि वो जो री इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनमें कोरोना वायरस की सीक्वेंस दूसरी सीक्वेंस है, जो हम अभी कर रहे हैं उससे डिफरेंट सीक्वेंस। माय गॉड। So we are not there knowing how long this will be there, or reinfected patients with complications will come. This will tell the time. Time will tell us कि कितने टाइम में ये वापस होता है, कितने टाइम में वापस आते हैं. But definitely yes, recovered patient may have infected again. अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक नई यूनिवर्सिटी खुल गई है जिसके अंदर आपको ना कोई फ़ीस जमा करानी होती है, ना आपको कोई फॉर्मल एडमिशन लेना होता है। और मज़े की बात तो यह है कि वहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे ज़्यादा देर तक तो आपका दम घुट जाएगा, आपको अस्थमा जैसा कोई डिजीज़ हो सकता है या फिर आपको लंग डिजीज़ हो सकता है। वर्स्ट केसेस में आप फेंट हो सकते हैं या आपकी डेथ भी हो सकती है। इफ़ आई टॉक अबाउट सैनिटाइज़र्स, जो सैनिटाइज़र्स की न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे कि ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको वर्स्ट केसेस में कैंसर भी हो सकता है। तो इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है? WhatsApp University is doing just a COVIDology. They have made it a COVIDology, and they are just spreading the COVID teaching in all over the media. Yes, in using a hand sanitizer causes a lot of skin problems. Skin cancer will occur or not, that will tell the time, because in 3 or 4 months that is not going to happen. Skin allergies are almost, yes, common there. And second was मास्क। using a mask. Those people who are using a cotton mask, they can, if they are running alone, then they can take it down and then can run. 995 mask, when people are doing strenuous exercises, they can get asphyxia, they can get respiratory problems. So it is advisable that those who are using N95 mask should not do the strenuous exercises. Don't climb stairs. Don't climb stairs very fast. Don't run fast. Don't play those sports which are requiring lot of exercises. So using N95 mask, no. And if using a cotton mask, it's okay. डॉक्टर, इफ़ आई टॉक अबाउट द फार्मर्स, द लेबरर्स, जो किसान हैं, मज़दूर हैं, उनका जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो इस केस में क्या उन्हें मास्क पहन के काम करना चाहिए या फिर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए या फिर उन्हें मास्क का कोई और ऑल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए? जैसे सिंगल लेयर मास्क लगा सकते हैं क्या वो, या फिर वो मास्क ना पहने तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है? नहीं, मास्क उतार के तो काम नहीं करना है, मास्क लगा के ही काम करें, लेकिन डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क को वो नीचे कर सकते हैं। हाँ, अगर डिस्टेंस है थोड़ी थोड़ी देर में अलग जा करके दे कैन डू इट। डॉक्टर, मास्क के बेसिक एटिकेट्स क्या हैं? मास्क को कैसे, कहाँ से पकड़ें, और अगर आगे हाथ लग जाता है मास्क के तो क्या करें, और मास्क को उतारना कहाँ से चाहिए? स्ट्रेप से नीचे। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी हमें बिल्कुल बिकॉज मैक्सिमम लोड इज ऑन द सरफेस ऑफ द मास्क। ओके, यू शुड नॉट टच द आउटर सरफेस ऑफ द मास्क। व्हाट इफ अगर गलती से टच हो जाए तो हमें हैंड वॉश कर लेना चाहिए, हैंड टू हैंड। डेफिनेटली। डॉक्टर विपिन, अगर मैं इंडिया में कोरोना वायरस की जो कंडीशन है उसे दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करता हूँ, जैसे इटली है, यूके है, वहाँ पर
कोरोना वायरस ने इनिशियली जितना नुकसान पहुंचाया, जितना लोग वहाँ पर बीमार हुए, जितना लोग वहाँ पर मरे, इंडिया में इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हमारे यहाँ पर 80 to 85% असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं और हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी एक हायर साइड पे है, जो कि अभी की बात करें तो मोर देन 75% हमारी रिकवरी रेट है। इसके अलावा हमारी जो मर्टेलिटी रेट है वो भी कम है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या इंडियंस की कोई लाइफस्टाइल है, हमारे यहाँ पर मौसम ज़्यादा होते हैं, या कोई ऐसी क्या चीज़ है कि हम कोरोना वायरस से इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं? This may be related to the genetic sequencing of the Indians. Then the viral virulence may be the reduced or somewhat less to cause more severe illnesses. And thirdly, Indians' dietary pattern and their immune system, that might be the reasons. But there is no, in a lot of studies, some people are saying that the BCG vaccination is preventing Indians, and someone says that measles vaccine have prevented it. But most of there is no convincing studies that these are the factors to reduce the disease severity in the Indians. आप बाहर निकलते हैं, आप लोगों को देखते हैं कि कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं मार्केट में, या कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, और पहन भी रहे हैं तो उनका मास्क इधर उधर जा रहा है, चिन पे मास्क लगा रहे हैं। तो आपको उन्हें देख के कुछ गुस्सा आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो आप डॉक्टर्स ही हैं, और अगर केसेस बढ़ते हैं तो वो आप डॉक्टर्स के ऊपर ही सारा बर्डन है कि केसेस बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स ही हैं जिनको इतने सारे पेशेंट्स को सर्व करना पड़ेगा। और क्योंकि पेशेंट्स को सर्व करने में डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनकी भी कई डॉक्टर्स हैं जिनकी सैडली जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। आप और हम तो समझा ही सकते हैं, कष्ट होता है तो फिर जो भी कष्ट होगा तो उसको ही भुगतना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि समझाने के बावजूद भी नहीं समझता तो परेशानी तो आएगी। क्योंकि यही है कि जब भी हमें कोई मिलता है तो वी ट्राई टू टेल देम। कई बार ऐसा भी हुआ मार्केट में या मॉल के अंदर हमने कह दिया कि यार मास्क ऊंचा कर लो, मेरे तो नहीं होगा कोरोना। अरे भाई आप भगवान हो, नहीं होगा, फिर भी मास्क ऊंचा कर लो, आपसे मेरे को हो जाएगा यार। आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे को तो बचा लो आप। डॉक्टर, क्योंकि मेरा भी मानना है कि जब तक लोगों के खुद के साथ नहीं होता कोई चीज़, वो चीज़ों को मजाक समझते हैं। जब तक कहते हैं ना कि खुद पर जब तक नहीं बीतती तब तक दूसरों की बात मजाक लगती है। जब खुद की फैमिली में किसी को ऐसी बीमारी, टच वुड ऐसा ना हो, बट अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, मास्क एटिकेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो खुदा न खास्ता अगर ऐसी बीमारी हो जाती है, क्या तब लोगों को समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक बीमारी है कोरोना वायरस? इसका तो सिर्फ यही है कि जब तक ना हो अच्छी बात है, होगा तो फिर भुगतना पड़ेगा। बचाव ही इसका इलाज है। जितना आप बच सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, जितना भी मीडिया प्रचार बचाव के लिए हो रहा है, हमें उन साधनों का उपयोग करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ ला रही है उनका अपने को प्रॉपरली पालन करना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो ICMR की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है प्रॉपरली, जब ही हम बच सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं बचेंगे तो ये तो बीमारी है। कुछ पेशेंट जिनके घरों में हो गई है उनको बेचारों को बड़ी मुश्किल हुई है। बॉडी वी आर नॉट गिविंग, body is cremated by the Nagar Nigam people. You are not able to see the bodies. That's very, very heartbreaking. That is very, very heartbreaking. You cannot means cremate your loved ones. You cannot see your loved ones 15, 20 days, 15, 25 days. When we are keeping them in ICU, you are not able to see them.
सो दिस इज़ वेरी वेरी स्केरी। जो मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बचे रहें, बहुत अच्छा है, और सिस्टम बचा रहे, आप बचे रहें, उसी से ही आप में सबकी भलाई है। इन दी एंड डॉक्टर, आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जितना हम एहतियात बरतें, क्योंकि अब जो वो समय तो निकल गया कि सबको लॉकडाउन में रखना है, बंद करना है, घंटी बजानी है या ताली बजानी है। अब सिर्फ अपने को अपना प्रॉपर खुद अपना ध्यान रखेंगे तो दूसरों का अपना ध्यान हो जाएगा। तो बेटर इज़ कीप डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, यूज़ मास्क, यूज़ मास्क, यूज़ मास्क। Thank you so much, Dr. Vipin, for your wonderful time. Now I believe that after watching this video, people will be able to distinguish between the myths and the facts. Thank you so much, sir.